तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियारा अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। आज हमारे साथ शिवम शुक्ला हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली यूजीसी नेट क्रैक किया है और इवन बहुत अच्छे नंबर से। इनका केवल केवल 2 नंबर से जेआरएफ रुका है। तो इनसे जानेंगे क्या है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सीएम शिवम फॉर योर दिस बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। और फिर बताइए किस तरीके से आपने तैयारी करी, ताकि आने वाले यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि इतना बड़ा कोर्स, आपको पता 10 यूनिट है लॉ में, अपने आप में लॉ 10 यूनिट लगभग 40 सब्जेक्ट के आसपास हो जाते हैं। तो किस तरीके से आपने तैयारी करी ताकि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको बड़ा ही मोटिवेशन मिले और थोड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से वो चल सके। तो फिर बताइए शिवम आप। Sir, so the strategy for the net examination shall be very simple because हमें पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा because even if we crack paper 2 to a very great extent, we won't be able to clear net. So one has to understand कि पेपर 2 क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें 10 यूनिट्स हैं जो कि खुद में ही बहुत बड़े हैं, तो one should understand that the resources that we are taking are up to the mark and they are very relevant also. एंड उसको देखने के लिए फॉर एग्जांपल हमें पीवाईक्यूज लेने पड़ेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस हैव कम ओवर द इयर्स एंड वी हैव टू एनालाइज कि जो हम रिसोर्स पढ़ रहे हैं या जो हम तैयारी कर रहे हैं इज इट अलाइनिंग विद दैट पीवाईक्यूज और नॉट. सो दिस शैल बी द स्ट्रेटजी फॉर पेपर 2. Precisely, we have to see that, for example, there are certain units, for example, jurisprudence. So we will see that there are certain portions of that unit जिससे ही क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल द डेफिनेशन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेट सिलेक्शन. सो वी हैव टू मास्टर दोस सब्जेक्ट्स जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं rather than delving very deep into those subjects जहां से comparatively कम क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारे हाथ में वहां पे चीजें कम होंगी. So for that one has to understand the more important topics and study them really hard and also understand what the paper demands from us. उसके साथ पेपर 1 में हमें ये देखना होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द डीआई पोर्शन एंड द मैथ्स एंड द रीजनिंग पोर्शन इज क्वाइट डूएबल. So we have to practice that so that at least we get that minimal amount of questions right so that there is no pressure on paper 2 as such. उसके बाद we can go to the other topics of research aptitude and teaching aptitude wherein after quite some study is needed. So if we take 2 together then I can say that in a minimal amount of time, for example 2 to 3 months would suffice if work regularly for this examination. सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन पूछना भूल गया, सॉरी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताइए, कहाँ से आपकी एलएलबी है, कहाँ से आपका एलएलएम है, सबसे पहले बताइए। DLLB honors from Nirma University in 2023. Okay. And thereby I pursued my LLM in corporate laws from National University of Juridical Sciences in Calcutta. Calcutta, Nirma University. My brother has also done MBA from there. It has a very good campus and very renowned law faculty. When I was in my coaching of judiciary, there's a many students from Nirma University who have qualified the judiciary. They were very rich. I think they have and lastly the Honorable CGI has also come in their convocation, I guess. Yes, sir. So it is very renowned faculty or very renowned college, I guess, in both MBA and both law as well. Yes, Okay. yes, sir. I understand that both the colleges played a very key role in shaping my legal acumen, not only for this examination but overall also. तो जैसे आपके कुछ यूनिट है, देयर आर सम यूनिट लाइक jurisprudence. How you have approached the jurisprudence unit? For did you follow made any specific strategy for that? For example, the jural to relatives and the opposites question, and there is particularly more questions on property and ownership and their definitions. The important definitions of mainly 3 jurists like Salmon, Wilfield, and Bentham. The main aspects which keep on repeating itself in the PYQs have to be studied more deeply rather than focusing as a whole. So I would say that the strategy would be very simple, so as to focus on the key areas and cover all the things. That is also important because it is quite unpredictable exam. So anything can come from anywhere, but one has to be very patient that if a question is easy, then one has to perform it. For example, अगर कोई question easy है तो हमें उसको करना होगा. For the difficult questions, yes, there is chance that we might miss it also. But for the easy questions, the questions which are predictable,
we have to at least solve those questions fully to our ability. जैसे जूरिस्प्रूडेंस में होती है बहुत सारी टर्म्स होते हैं, जैसे कोई जर्मी बेंथम है, आज मैंने यूट्यूब में जर्मी बेंथम पढ़ा है, तो जैसे जो टर्म्स होते हैं क्या आपने उनको समझा था या समझा नहीं था, बस उनको मगअप किया था? सर मगअप सर इतना सारे डेफिनेशन है कि मगअप करना इज वेरी डिफिकल्ट, सो वन कैन यूज द लीगल एक्यूमेन आल्सो, वी कैन मेक वेरियस टर्मिनोलॉजीज छोटे छोटे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट वी कैन लर्निंग हैज नो अल्टरनेटिव, आई अंडरस्टैंड इन जूरिस्प्रूडेंस वी हैव टू लर्न, बट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ chronology in our mind, so that once a similar question comes in the examination, so we can easily recall that. जैसे जूरिस्प्रूडेंस से मैं भी स्टूडेंट था, मुझे बड़ा टफ लगती है, लेकिन मैंने जब अभी जुडिशरी के लिए मैंने मतलब यहाँ पढ़ा, जुडिशरी के लिए पढ़ा और पढ़ाया, तो मैंने एक अप्रोच फाइंड करी। वो अप्रोच ये रही कि सबसे पहले जो 6 स्कूल्स हैं उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग करो कि एनालिटिकल स्कूल किसी एनालिसिस की बात करता है, नेचुरल लॉ स्कूल नेचुरल। अब जो उसके जो जूरिस्ट होंगे ना वो बहुत हद तक सिमिलर होंगे, क्योंकि एक तरह के ऑथर्स होते हैं, वो एक तरह का सोचते हैं, उनको एनालिटिकल स्कूल में। तो अगर उन वर्ड्स को याद तो करना है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम साइंटिफिक पॉजिटिविज्म बात कर रहे हैं, तो साइंटिफिक पॉजिटिविज्म क्या है? साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मतलब थोड़ा सा उनको पूरा 100% तो नहीं कॉन्सेप्ट बेस कर सकते, लेकिन वो 50% अगर आप कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लोगे तो आपके लिए थोड़ी सी मगअप करना कम हो जाए, क्योंकि मगअप तो करना है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस बहुत मगअप करना बहुत टफ हो जाता है। तो थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो जूरिस्प्रूडेंस आई थिंक बहुत अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं, और बहुत स्कोरिंग यूनिट भी है ना? Yes, I understand. हाँ, I completely agree with that, sir. And the one thing which has also helped me in jurisprudence is that I also use the image of the particular jurist, so Okay. that it stays with me for a longer amount of time, so that I can use that image to recall what he has said on हाँ, that particular. विजुअल वही है ना कि हम लोग का जो लर्निंग होता है ना, हम लोगों का सारे आंखों से भी काम कर रहे हैं, सुने भी। क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन आपने भी एग्जाम में दिए, मैं भी जब एग्जाम देता हूँ तो ये होता है कि याद करा हुआ नहीं आता, लेकिन कभी किसी से डिस्कशन करा है या कभी कोई एबनॉर्मल चीज हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये जैसे साइंटिफिक पॉजिटिविज्म अब अगर आपके एग्जाम में आ गया तो हो सकता है आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठ गया हो। तो दिमाग को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है कि आप इस तरीके से कभी कभी बैठे बैठे ही कौन सा क्वेश्चन आपके माइंड में स्टिक करे। तो हर चीज याद करना, क्योंकि हो सकता है जो चीज पढ़ के जाओ वो बिल्कुल कभी कभी एग्जाम में ना है, और यूजीसी नेट में है, यूजीसी नेट में कभी भी कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते हो आप। Yes, it is quite an unpredictable exam. So इसीलिए सर फोकस ये सारे यूनिट्स को अच्छे से कवर जरूर करना चाहिए, बट हाँ ये वो क्वेश्चन जो इजी है या फिर मॉडरेट लेवल के हैं उनको तो करना ही चाहिए, बिकॉज अगर वो गलत होगा तो देन देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर दिस। अच्छा, आप जेआरएफ अड्डा आपने फॉलो किया था अपनी तैयारी में? Yes sir, actually after I pursued my LLM from NUJS, I was very skeptical about this examination. So I took your guidance about this examination, and you also helped me understand that what this examination particularly requires. And more often than not, you have been very kind enough to give the helpful insights that what sources are to be followed and what resources have to be studied. So I think that your valuable insights were very useful, and the resources also provided by you were also very good, sir. For paper 1, what you have referred to? Sir, for paper 1, since I had less time, so I could not take the paid batch. But yes, I followed JRF Adda Aditi ma'am and some other people on YouTube. But mainly Aditi ma'am's YouTube content was sufficient in itself to score decent marks in paper 1. Okay. And what about JRF पे ट्राई करने जा रहे हो आप? Yes, sir. Probably yes, sir. If I'm not going for some other profession, then probably yes. नहीं, बिल्कुल यू शुड ट्राई, और इजिली यू कैन निकाल सकते हो। और हम लोग अगली बार 100% के साथ मिलेंगे। AIR1 शिवम शुक्ला हैं, यही ब्लेसिंग के साथ हम लोग की आज वीडियो को ऑफ करते हैं। और कोई लास्ट कोई चीज आप एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहते हो? Sir, I'll tell the aspirants that it is not a very difficult exam, but yes, it is a very unpredictable exam. So one has to understand कि पेपर 1 और पेपर 2 को हमें साथ में लेके चलना है, और बेसिक्स पे एंड कॉन्सेप्ट्स पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स हमारे बहुत स्ट्रांग हैं, बिकॉज आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स आर क्लियर, देन ओनली द लर्निंग कैन टेक प्लेस, एंड इवन द रोड लर्निंग कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा आपका, जैसे नेट क्रैक करने को कॉन्फिडेंस लेवल में क्या होगा? Yes, sir. It is usually said that an
even degree without net is not that useful also. हम्म So I can understand the level of confidence that the net offers is very much, because one has a definite profession to go to. In case of a need, we can definitely go for assistant professorship, and we can also apply for good PhD programs. So it has always boosted my confidence all throughout this time. अब वो भी रहता है ना, अब आपके पास, अब आप जैसे जुडिशरी की तैयारी करोगे तो अब आपके पास पॉकेट में कुछ ऑलरेडी है, आपने एक एफडी बना ली है, यू हैव मेक सम एफडी, तो अब आपसे ये तो कोई नहीं ले सकता है, तो अब आप मोर कॉन्फिडेंट, मुझे तो ये लगता है, मैं अपने कॉलेज में बच्चों को बताता हूँ कि आप लोग एक बार जुडिशरी के फ्रेंड्स बहुत सारे को मैंने कहा आप तैयारी करो जुडिशरी की, बेस्ट है, वो तो बेस्ट है, लेकिन जैसे एलएलएम कर रहा है तो फिर नेट क्रैक कर लो, एक चीज अपने पॉकेट में सेव कर, क्योंकि लिटिगेंट या तो आप कोर्ट के प्रैक्टिस एलएलएम के एलएलबी के तुरंत बाद, तब तो बेटर है। अब जब आपने उसमें थोड़ा टाइम दे दिया तो फिर मतलब थोड़ा सा दूरी हो जा रही, थोड़ा फिर हेजिटेशन होता है बाहर में जाने का, तो फिर लगता है कि अब यार पढ़ा है तो अब उसको यूज किया जाए। तो अगर आप लोग नेट क्रैक कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जुडिशरी फिर बहुत ईजी हो जाती है। Yes, sir. So it is always a stepping stone towards हाँ the big things. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक शिवम, और अगली बार AIR-1 के नाम से आपका इंटरव्यू लेंगे हम ये लोग, और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। Thank you so much, sir. थैंक यू शिवम।